Hi guys, welcome back to my channel. This is Mimansha, an Indian MBBS student currently studying in Nepal. And this video is going to be about a basic information that you should know before coming for MBBS in Nepal. So without any delay, let's begin. So I'll be presenting my presentation and explaining everything to you. So let's go. So, talking about the universities that are present here for all the medical colleges, there are seven in number, but major universities two हैं. That is the Tribhuvan University, and the second one is the Kathmandu University. So, but there are seven in total. So let's have a look at them all. The first one is the Tribhuvan University. The second is the Kathmandu University. Third is the BP Koirala Institute of Health Sciences. Fourth is the Patan Academy of Health Sciences. Karnali Academy of Health Sciences, Madhesh Institute of Health Sciences and the Rapti Academy of Health Sciences. ये मेजर 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं. दो इनमें मेन है जो कि TU है और KU है. TU और KU से मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस एफिलिएटेड है. बाकी सारे ऑलमोस्ट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं. तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. आई गेट अ लॉट ऑफ DMs की दीदी जब हम इंडिया वापस आएंगे तो क्या हमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगा अगर हम नेपाल से MBBS करते हैं, या तो यही डाउट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ एक नोटिस है जो कि नेपाल मेडिकल काउंसिल ने पब्लिश किया है. सारी पॉइंट्स ये स्टेट करती हैं कि यहाँ की जो डिग्री है वो NMC अप्रूव्ड है. लेट्स रीड इट. नोटिस रिगार्डिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स इन नेपाल. This is to notify that the Nepal Medical Council recognizes undergraduation degrees MBBS, BDS and equivalent courses with a minimum academic duration of 5.5 years, which includes compulsory 1-year internship. In Nepal, medical colleges conduct all academic programs in English as the primary medium of instruction. The Nepal Medical Council has been providing provisional registration to all MBBS and BDS students in Nepal during their internship. According to NMC internship guidelines, the MBBS BDS students must complete their internship in the teaching hospitals affiliated to their respective medical colleges. This provisional registration is equivalent to Nepalese citizens, allowing both Nepali and international students to practice medicine equally. After graduation, foreign nationals are eligible to take the licensing examination as per NMC regulations. Upon passing the licensing examinations, the foreign candidate can obtain a license equivalent to that of Nepalese citizens. This license procedure does not require good standing certificates from the candidate's home country council. But इसमें यह है कि आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा और इंडिया जाके भी एक साल आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा. दिस इज़ अ ड्रॉबैक. रेस्ट ऑल इज़ फाइन. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So about Nepal, location, between India and China, area and population, latitude, capital city यहाँ की काठमांडू है, currency Nepali rupees, calling code +977. Coming on to the three types of universities in Nepal. One is the government university, the second is the self-funded university, and the third is an autonomous institution. अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं. सो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो दो हैं यहाँ पे. वन इज़ द IOM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन विच इज़ इन काठमांडू, एंड द सेकेंड इज़ द नेपालीज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज विच इज़ ऑल्सो इन काठमांडू. सो एंड आई विल टेल यू, जो IOM है इसमें 8 फॉरेन सीट्स हैं एंड Nepalese आर्मी इंस्टीट्यूट में 4 फॉरेन सीट्स हैं. सो इट इज़ बट ये टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं. इफ़ यू गेट इनटू दिस, वैसे इसकी सीट्स काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, बट इफ़ यू गेट इनटू दिस इट्स वेल एंड गुड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है
फॉरेन नेशनल्स के लिए फ़ीस ऑलमोस्ट इक्वल है, सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. विच एवर कॉलेज यू प्रेफर is best for you, is actually best for you. Now moving on to the private medical colleges affiliated to Tribhuvan University. The first is the KIST Medical College, which is in Lalitpur, Chitwan Medical College, which is in Bharatpur, Gandaki Medical College, which is in Pokhara, National Medical College, which is in Birganj, Universal Medical College, which is in Bhairava, एंड जानकी मेडिकल कॉलेज विच इज़ इन जनकपुर. सो ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड टू TU. और पीछे वाली जो थी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थी जो कि TU से एफिलिएटेड थी. आगे मूविंग ऑन टू दी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ काठमांडू यूनिवर्सिटी. काठमांडू यूनिवर्सिटी का जो मेन यूनिवर्सिटी का कॉलेज है दैट इज़ दी Kathmandu University School of Medical Sciences, which is also my college, which is also the name of my college, because a lot of students ask me in DVMs कि दीदी आप कौन से कॉलेज से हो. So I study in Kathmandu University School of Medical Sciences, which is in Dhulikhel. It is around 2 hours away from Kathmandu. Yes, okay. काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, उनमें आता है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज MCOMs, विच इज़ इन पोखरा. सेकेंड इज़ लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज पाल्पा, देवदाहा मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल इन देवदाहा. देन काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज धुलीखेल, काठमांडू मेडिकल कॉलेज इन काठमांडू KMC. Then Virat Medical College, Viratnagar, Noble Medical College, Viratnagar, College of Medical Sciences, COMS, which is in Bharatpur, Nepal Medical College, which is in Kathmandu again, Nepalganj Medical College, which is in Nepalganj, and then BNC Medical College and Teaching Hospital, which is in Chhapa, Birtamur. Next, autonomous institution neither affiliated to KU or TU. जिन सारे कॉलेजेस की अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज ललितपुर, BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज विच इज़ इन धरान. इफ़ यू आर गेटिंग इनटू BP कोइराला, go for it. Then you have Karnali Academy of Health Sciences, which is in Karnali, Madhesh Institute of Health Sciences, Janakpur, and then Rapti Academy of Health Sciences, which is in Dang. तो इन सारे कॉलेजेस की अपनी यूनिवर्सिटी है, इसलिए ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है. ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेज, उनका फी स्ट्रक्चर और लोकेशन एंड एवरीथिंग. आई कवर दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसे कवर करते हैं हम आगे. नेक्स्ट स्लाइड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं. द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10+2 साइंस कंटेनिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद 50% एग्रीगेट इन टोटल मार्क्स और GPA 2.4 or secured the percentage equivalent to the above eligibility in regards to the certificate level programs, that is A level, with different grading system. Sri Lankan students, this is not for the Indian students, so we'll skip this. Age should be at least 17 years by the last date of submission of application are eligible to apply in the MBBS or BDS course in Nepal. Also नेपाल में जो आपका एडमिशन होता है फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो 2 कैटेगरीज के बेसिस पे होता है. वन इज़ दी सब कैटेगरी 1 and the second is the subcategory 2. ओके, तो सब कैटेगरी 1 आपको MECEE-BL यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है लाइक नीट, यू हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम और जो सब कैटेगरी 2 है ये होता है नीट बेसिस पे, नीट स्कोर के बेसिस पे होता है. इफ़ यू
are getting a good decent score in NEET, if you are, अगर आपके नीट में अच्छा स्कोर आया है, लाइक नॉर्मली 300 के ऊपर है, तो आप MEC का पेपर देने का सोचो ही नहीं, आप डायरेक्ट नीट के थ्रू एडमिशन लो। MEC BL इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका नीट पे काफ़ी कम स्कोर है और जस्ट पासिंग मार्क्स है। देखो, नीट आपको क्वालिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट क्वालिफाइंग यू कांट कम फॉर MBBS इन नेपाल, बट इफ़ योर स्कोर इज़ वेरी लो और आपको ये डर है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, देन यू गो फॉर द MEC एग्ज़ाम। और ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, अपेरेंटली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट आता है इसमें, और बायोलॉजी के 2 पार्ट्स, बॉटनी और जूलॉजी। सो आई राइट इट हियर। तो जो MEC वाला होता है हमारा MEC BL, अगर आपका स्कोर बहुत लो है तो आप ये पेपर दो, लेकिन एक फ़ायदा, अगर आपका स्कोर हाई भी है तब भी आप अगर ये पेपर दे रहे हो और आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, तो यू विल गेट एन अपर हैंड ऑन द स्टूडेंट्स जो नीट के बेसिस पे आ रहे हैं। तो आपको काउंसलिंग के डे आप अपना कॉलेज चूज़ करने पहले मिलेगा, तो दैट्स वन बेनिफिट। बट ये भी है कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप नीट के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। मिनिमम पासिंग मार्क्स आई गेस 60 मार्क्स है यहाँ पे, 200 मार्क्स का पेपर होता है, एंड देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, बॉटनी, zoology, physics, chemistry and the math, mental ability test। ये 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, 200 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। यस, एंड दोज हु आर गोइंग फॉर द सब कैटेगरी 2, नीट के बेसिस पे जो आपका स्कोर है उसी मेरिट बेसिस पे आपको काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज मिलेगा। कोई प्री बुकिंग वगैरह कुछ काम नहीं आती है, उससे कुछ कंफर्म नहीं होता। प्री बुकिंग बस कुछ कॉलेजेस में इसलिए होती है ताकि आप अपना फ़ीस कम करवा के उसे फिक्स करवा लो उस कॉलेज में, बाकी वो भी कंफर्मेशन नहीं है। और जो आपको कॉलेजेस के थ्रू एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, दैट इट इज़ंट कन्फर्म्ड कि आपको वो कॉलेज मिल चुका है। आपको कॉलेज सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के बेसिस पे ही मिलेगा, उसके लिए आपको किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्प चाहिए, हेल्प के लिए हम हैं। एजेंट्स बस आपको हेल्प कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू, लेकिन कोई कॉलेज कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो मूविंग ऑन, ये सारी कॉलेजेस की लिस्ट हैं, इसमें कितनी सीट्स हैं ये सारी हैं, ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सीट्स देख लेते हैं। IOM महाराजगंज में है 8 सीट, 8 foreign seats. This are the foreign seats. IOM महाराजगंज में है 8 सीट्स, BP कोइराला में अगेन 8 सीट्स, KUSMS में 33 सीट्स, पाटन में 5 सीट्स, नेपलीज आर्मी में 4 सीट्स, किस्ट 33, लुम्बिनी 33, चितवन 33, मणिपाल 50, विराट 33, काठमांडू मेडिकल कॉलेज 33, गंडकी मेडिकल कॉलेज अगेन 33, नेपाल मेडिकल कॉलेज 33 एंड सो ऑन, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो पर्सनली टेक्स्ट मी ऑन माई DMs in Instagram or write it in the comment section, or I'll be very happy to help. Next, ये ईच कॉलेजेस का हम बाद में करेंगे, एक कॉलेजेस को लेकर हम बाद में करेंगे। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दैट आपको अभी से प्रिपेयर कर लेना है बिफोर MEC रिलीजेस इट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, विच इज़ योर क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, क्वालिफाइड सेम ईयर का, बैक ईयर का यहाँ नहीं चलेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्लास 12 का। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो आप प्लीज़ बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आके आपको एम्बेसी में रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, और आधार कार्ड।
This is the document checklist that you need to have. And that's all for today, guys. I hope you like the video. Subscribe and please comment and share this video.